Hello, children. Welcome back in your English class. Children, have you observed? We all have different types of faces and all have different talents, right? Yes, हम सबके चेहरे अलग अलग होते हैं और सभी के पास कुछ ना कुछ अलग टैलेंट होता है. In the same way, you might have observed different types of leaves, some narrow, some wide, and some soft. बट दे ऑल हैव differences. उसी तरह किसी भी ट्री की डिफरेंट टाइप्स की लीव्स होती हैं. कुछ ब्रॉड होती हैं, कुछ छोटी होती हैं, कुछ लंबी, कुछ पतली. तो टुडे वी विल स्टडी अबाउट वेरी सैड फर ट्री who was not happy with its needle shaped leaves. Let's start our new lesson, the discontented fir tree. As you can see in this picture, different types of leaves. This is peepal tree. It is also having different shapes. This is another tree. This is avla tree. You can see these all trees have different types of leaves. Some have broad, some have narrow. The name of lesson 2 is the discontented fir tree. As you can see in this picture, this is the fir tree. So what is the meaning of discontented? Discontented means not happy, sad. Sad fir tree. Fir trees also have needle shaped leaves. That's why it was very sad. So let's read the lesson and find out what is the reason behind that. A fir tree grew in a thick forest. It had dark green needles. Children, needles means सुई. आपने देखा होगा आपकी मम्मी सुई से सिलाई करती हैं. तो here the tree is not having needles. Here needles means नुकीली पत्तियां, पेड़ की नुकीली पत्तियां. A fir tree grew in a thick forest. That is the fir tree. It grew in thick forest. घने जंगलों में एक फर का ट्री था. It had dark green needles. It had dark green needles. Here, needles means leaves. Its trunk was thick and straight. As you can see in the picture, this is called the trunk. Middle part of the tree is called the trunk. This is of brown color. It was straight, बिल्कुल सीधी थी. The wind sang a song when it moved through its branches. जब हवा उस पेड़ की पत्तियों के पास से निकलती थी तो ऐसा लगता था कि वो गाना गा रही है. One day it looked at the leaves of the other trees. All the trees were having different types of leaves. Round, oval, narrow and broad. Had different shapes. These had different shapes. Round, oval, narrow and broad. एक दिन उसने देखा दूसरे पेड़ों की पत्तियों को. किसने? फर ट्री ने. One day it looked at the leaves of the other trees. These had different shapes. जैसा कि हम सब भी देखते हैं अपने आसपास इतने ट्रीज हैं, उनकी सभी की पत्तियां डिफरेंट शेप्स में होती हैं. उसने भी देखा, फर ट्री ने भी देखा, मेरे आसपास जो पेड़ हैं उन सब की पत्तियां गोल हैं, ओवल शेप में हैं, नैरो हैं, ब्रॉड हैं, कितनी सुंदर हैं. The fir tree looked sadly at its needles and said, फर ट्री ने अपने आप को देखा, उसने अपनी पत्तियों को देखा, अपनी नीडल्स को देखा और कहा, My needles are not proper leaves. They are stiff and sharp. मेरी जो नीडल्स हैं, बार बार वो नीडल्स किसको बोल रहा है? अपनी नुकीली पत्तियों को. मेरी जो नीडल्स हैं वो बहुत स्टिफ हैं. स्टिफ कैन नॉट मूव, जो मुड़ नहीं सकती, बहुत कड़क. एंड शार्प, दे आर स्टिफ एंड शार्प. What is the meaning of stiff? Stiff means it cannot move, it cannot bend. जो चीज़ बहुत कड़क होती है, जो मुड़ नहीं सकती. एंड शार्प, वो बहुत नुकीली है. They are not like the leaves of other trees. ये दूसरे पेड़ों की पत्तियों की तरह नहीं है. I wish I had leaves of gold. काश कि मेरी पत्तियां सोने की होती, गोल्ड की होती. ऐसा किसने कहा? फर ट्री.
Fir tree was sad and it was thinking about that my leaves are stiff and sharp. I wish I had leaves of gold. काश कि मेरे पेड़ की पत्तियां गोल्ड की होती, सोने की होती. A wood fairy heard its sad words. वुड फेरी, जो जंगल की फेरीज होती हैं, देवी होती हैं, उन्होंने उसके दुखी वर्ड्स को सुना. शी टच्ड इट्स बॉग्स विथ हर मैजिक वैंड. उसने, जैसे कि आप सभी जानते हैं, परियों के पास मैजिक वैंड होता है. उसने उस पेड़ को शी टच्ड इट्स बॉग्स विथ हर मैजिक वैंड्स. मैजिक फेरी ने अपने मैजिक वैंड से बॉग्स, बॉग्स मीन्स एक वन ऑफ द ब्रांच ऑफ अ ट्री, उसने अपने मैजिक वैंड से पेड़ की एक ब्रांच को टच कर दिया. बॉग्स को मैजिक वैंड से टच करा. द नेक्स्ट मॉर्निंग द नीडल्स ऑफ द फर ट्री हैड चेंज्ड इनटू शाइनिंग गोल्ड लीव्स. इट वाज वेरी हैप्पी बट इट्स हैप्पीनेस डिड नॉट लास्ट लॉन्ग. नेक्स्ट मॉर्निंग फर ट्री ने देखा उसकी सारी पत्तियां गोल्ड की हो गई थी. You can see in this picture, this is the wood fairy. She touched the boughs of the fir tree with her magic wand and all the leaves turned into gold leaves. उस पेड़ की सारी पत्तियां गोल्ड की हो गई थी. A robber came and started plucking all the gold leaves. Next morning what happened? All the needles changed into gold leaves. Then a robber came and started plucking all the gold leaves. Robber means a thief. एक चोर आया, उसने देखा, अरे वाह, ये तो सोने की पत्तियां हैं, और उसने सारी पत्तियां वो प्लग करने लगा, तोड़ने लगा, और अपने पास उसने तोड़कर रख ली. A robber came and started plucking all the gold leaves from the fir tree. The fir tree begged, please don't take my gold leaves. Fir tree ने कहा, मेरी गोल्ड की लीव्स को मत लो. Begged means उसने प्रार्थना करी. Don't take my all gold leaves. The robber replied, I'll sell all the leaves and buy food for my family. रॉबर ने कहा, no no, I will take it. I will pluck all the leaves. मैं उसको बेच दूंगा और उससे अपनी फैमिली के लिए, उन पैसों से अपनी फैमिली के लिए फूड ले जाऊं. देन ही रैन अवे विथ ऑल गोल्ड लीव्स. देन रॉबर रैन अवे फ्रॉम ऑल गोल्ड लीव्स. उसने सारी पत्तियों को तोड़ लिया और वो लेकर भाग गए. द फर ट्री स्टार्टेड वीपिंग. फर ट्री दुखी होकर रोने लगा. वीपिंग मीन्स रोने लगा. It looked ugly without the gold leaves. You also imagine without leaves, बिना पत्तियों के पेड़ कैसा दिखेगा. वो बहुत अगली दिखने लगा. अगली मीन्स बिल्कुल अच्छा नहीं दिख रहा. It sobbed. I wish I had sparkling glass leaves. वो रोने लगा. Sobbed. काश कि मेरी पत्तियां ग्लास की होती, स्पार्कलिंग, चमकती हुई कांच की तरह होती. They will shine in the sunlight. I will look like a tree of light. और जब सनलाइट उनके ऊपर आती तो वो बिल्कुल चमकती और मैं एक लाइट की पेड़ की तरह दिखता. Like a tree of light. As you can see here, word meaning stiff, S-T-I-F-F. Stiff means difficult to bend or move. Means hard. Sparkling, S-P-A-R-K-L-I-N-G. Sparkling means shining brightly. Boughs, a large branch of a tree. Boughs means B-O-U-G-H-S. Boughs means a large branch of a tree. पेड़ की बहुत बड़ी branch. Now let's move ahead. What happened? The kind wood fairy heard its words. Again, when the tree was weeping, जब वो tree रो रहा था और वो ये सोच रहा था कि काश मेरा जो पत्तियां हैं वो कांच की होती और मैं एक ग्लास के पेड़ की तरह, एक लाइट के पेड़ की तरह चमकता. काइंड वुड फेरी हर्ड इट्स वर्ड. उस समय वुड फेरी ने उसके वो वर्ड्स सुने. शी टच द बॉग्स ऑफ द फर ट्री वंस मोर विथ हर मैजिक वैंड. उसने सोचा कि चलो, वो बहुत काइंड थी, वुड फेरी बहुत दयालु थी. उसने फिर से अपने मैजिक वैंड से फर ट्री की बॉक्स को टच किया. नेक्स्ट मॉर्निंग द फर ट्री वॉज कवर्ड विथ स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स.
अगली ही सुबह नेक्स्ट मॉर्निंग जो फर ट्री की लीव्स थी फिर से बिल्कुल स्पार्कलिंग ग्लास लीव्स की तरह चमकने लगी, वो एक लाइट के पेड़ की तरह दिखने लगा। द एनिमल्स एंड बर्ड्स ऑफ द फॉरेस्ट लुक्ड एट इट विथ वंडर। फॉरेस्ट में तो एनिमल्स और बर्ड्स होती हैं, वो उस पेड़ को बहुत वंडरली देखने लगे, आश्चर्य से देखने लगी। Alas, its happiness did not last this time either. उसकी ये खुशी इस बार भी ज़्यादा देर तक नहीं रह पाई। What happened? Let's see. A stormy wind started blowing through the forest. It blew so hard that all the trees started shaking violently. Stormy wind started blowing. Stormy wind means बहुत तेज आंधी तूफान आने लगा, और जो पेड़ थे, जो भी ट्रीज थे फॉरेस्ट में, वो बहुत तेज़ी से, जब भी बहुत आंधी आती है, बारिश होती है, तेज़ आंधी आती है, तो आपने भी देखा होगा पेड़ बहुत तेज़ी से हिलते हैं, उनकी सारी पत्तियां हिलती हैं। तो सारे पेड़ वायलेंटली मीन्स बहुत तेज़ी से हिलने लगे। क्रैश! All the sparkling glass leaves of the fir tree broke into small pieces. It was ugly and leafless again. क्या हुआ फिर? All the sparkling glass leaves of the fir tree broke into small pieces. क्योंकि वो ग्लास की थी, वो कांच की बनी हुई थी, उसकी सारी पत्तियां वो टूट टूट कर नीचे छोटे छोटे पीसेस में गिर गईं। देन फर ट्री, फिर से वो फर ट्री फिर से अगली दिखने लगा, फिर से बिना पत्तियों वाला पेड़ दिखने लगा। It wept loudly. The cruel wind had broken all my leaves. What shall I do? I wish I had broad and smooth green leaves. Then I'll be contented and happy. वो फिर से बहुत तेजी से रोने लगा। It wept loudly. कि क्रूअल विंड ने, जो बहुत तेज हवा चली, उसने वो किसको दोषी देने लगा? हवा को। उसने कहा उसने मेरी सारी पत्तियां तोड़ दी, अब मैं क्या करूं? आई विश आई हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स। काश कि मेरी पत्तियां बहुत चौड़ी चौड़ी होती, बहुत नरम होती, स्मूथ होती और ग्रीन कलर की होती। देन आई विल बी कंटेंटेड एंड हैप्पी। फिर से मैं खुश हो जाऊंगा और मैं फिर हैप्पी रहूंगा, फिर मैं कुछ भी नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी पत्तियां, मैं चाहता हूं कि एक बार फिर से ब्रॉड और स्मूथ हो जाए। द वुड फेरी हर्ड इट्स सोप्स अगेन एंड ग्रांटेड इट्स विश। वुड फेरी ने फिर से उसकी विश सुनी और उसकी विश फिर से पूरी कर दी। क्या? द नेक्स्ट मॉर्निंग द फर ट्री हैड ब्रॉड एंड स्मूथ ग्रीन लीव्स। अगली सुबह फर ट्री की लीव्स बहुत ब्रॉड मीन्स चौड़ी चौड़ी हो गई, और ग्रीन और बहुत सॉफ्ट हो गई, नरम हो गई। एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, इट वॉज फुल ऑफ जॉय। व्हाट ब्यूटिफुल लीव्स आई हैव। वो बहुत खुश हो रहा था, वो सोच रहा था वाह मेरी पत्तियां कितनी सुंदर हैं। रॉबर्स वॉन्ट स्टील देम। कोई भी चोर इनको नहीं चुरा सकता। द क्रूअल स्ट्रॉन्ग विंड कांट ब्रेक देम। क्रूअल विंड भी इस पत्तियों को नहीं तोड़ सकती। नाउ आई विल बी हैप्पी फॉर एवर। अब मैं हमेशा खुश रहूंगा, मेरी पत्तियां बहुत अच्छी हो गई। सडनली देयर वॉज अ नॉइज ऑफ ब्लीटिंग इन द फॉरेस्ट। अचानक ही उसने ब्लीटिंग मीन्स द साउंड मेड बाय गोट्स। As you can see in the picture, goats are there. They are eating its smooth, broad leaves. Suddenly उसने सुना goats की आवाज। That is called bleating. 3 billy goats were wandering in the forest looking for something to eat. 3 billy goats were wandering in the forest looking for something to eat. They saw the broad, soft green leaves of the fir tree. They ran to it and started eating its tasty leaves. वो दौड़ कर आई और उसकी फर ट्री की जो स्मूथ ब्रॉड लीव्स थी वो खाने लगी, उनको बहुत अच्छी लग रही थी। Ouch, ouch, Billy goats, please don't eat my leaves. फर ट्री ने उनसे कहा, Billy goats, don't eat my leaves. I want everyone to admire them, cried the fir tree. फर ट्री ने बोला, रोने लगा और बोलने लगा, नहीं, मैं चाहता हूँ कि सब बोलें कि तुम्हारी पत्तियाँ कितनी सुंदर हैं, तुम्हारे पेड़ की जो लीव्स हैं वो कितनी सुंदर हैं।
The billy goats replied, "We are very hungry." बिली गोट्स ने बोला, हम बहुत भूखे हैं. We'll eat them all up. हम सब खा जाएंगे क्योंकि हमको बहुत तेज भूख लगी है. We all are very hungry. They ate up all the leaves of the fir tree. उन्होंने उस फर ट्री की स्मूथ ब्रॉड लीव्स, सब पूरी लीव्स को खा गई. देन दे वॉक्ड अवे, और उसके बाद चली गई. एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर, the fir tree looked like again without leaves, ugly. The fir tree wept again. It said to the wood fairy. Fir tree फिर से रोने लगा और उसने wood fairy से कहा, I don't want any green leaves. I don't want any green leaves. उसने बोला, मुझे कोई सी भी green leaves नहीं चाहिए. I'll never be unhappy or discontented. मैं अब कभी भी दुखी नहीं होऊंगा और अनसेटिस्फाइड नहीं होऊंगा, डिसकंटेंटेड नहीं होऊंगा. आई डोंट वॉन्ट गोल्ड लीव्स, ग्लास लीव्स और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स. मुझे गोल्ड लीव्स भी नहीं चाहिए, ग्लास लीव्स भी नहीं चाहिए और ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स भी नहीं चाहिए. प्लीज़ गिव मी बैक माई ग्रीन नीडल. आई ऑलवेज बी हैप्पी एंड कंटेंटेड विद माई ग्रीन नीडल्स. मुझे वापस ही मेरी नीडल्स वापस कर दो. मैं जैसा था मुझे वैसा ही वापस से बना दो. मुझे गोल्ड की लीव्स भी नहीं चाहिए, मुझे ब्रॉड सॉफ्ट लीव्स भी नहीं चाहिए, मुझे ग्लास की लीव्स भी नहीं चाहिए. द वुड फेरी गेव इट बैक इट्स शार्प स्टिफ नीडल्स. वुड फेरी ने वापस से उसकी शार्प और स्टिफ नीडल्स वापस कर दी. द नेक्स्ट मॉर्निंग द लिटिल फर ट्री स्टूड हैप्पीली इन इट्स एवरग्रीन ड्रेस. नेक्स्ट मॉर्निंग वुड जो फर ट्री था वापस से अपनी पुरानी पत्तियों में वापस आ गया. चिल्ड्रन, व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम दिस स्टोरी? और we will learn all these word meaning. Violently, violently. Violently means with great force. बहुत तेज. Here violently means with great force. बहुत तेजी से, बहुत ताकत के साथ हवा चल रही थी. Gave it what it wanted. Granted its wish means कि हम जो चाहते हैं वो हमें मिल जाए. Always would fairy granted its wish. कंटेंटेड, फीलिंग हैप्पी एंड सेटिस्फाइड मीन्स कि जो हमारे पास है उसी में हमको खुश रहना चाहिए. ब्लीटिंग, अ साउंड दैट शीप एंड गोट मेक. So what is the moral of the story? Yes, we should be satisfied with what God has given us. हमें उसी में सेटिस्फाइड रहना चाहिए जैसा हमको भगवान ने बनाया है, जो हमको भगवान ने दिया है, गॉड ने जो हमको दिया है. वी शुड फाइंड आवर टैलेंट इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग फॉल्ट्स इन आवर सेल्फ. हमें अपने अंदर की कमियों को नहीं देखना चाहिए, फॉल्ट्स को नहीं देखना चाहिए. हमें अपने अंदर जो हमारे अंदर टैलेंट्स हैं उनको देखना चाहिए. हमें हमारी कमियों को नहीं देखना चाहिए. So this is the moral of the story. We should be satisfied with what God has given us. We should find our talents instead of finding faults in ourselves. So children, this is the explanation of this lesson. Thank you.